Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we are going to explore the facts about the entitled theme Verbal Tests of Intelligence. As we know that intelligence refers to an individual's global mental capacities and abilities. Intelligence tests essentially measures an individual's rational and abstract thinking. The intelligence tests are designed to measure the global mental capacities of an individual in terms of verbal comprehension, perceptual organization, reasoning, and so on. Intelligence is the global capacity or ability possessed by an individual. On the basis of that ability or potential, the individual is able to perform any type of task or activity. जैसे कि हम टेम्परेचर डिफरेंस थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, अगर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालनी है, we are using the instrument that is known as barometer. But question arises here, how we will measure the intelligence? Intelligence is the abstract quality or abstract concept. We cannot directly measure the intelligence of an individual because it is completely abstract in nature. तो किस तरीके से हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं? जब हम साइकोलॉजी के प्रिज्म से देखते हैं, psychologists has designed various intelligence tests, and with the help of those intelligence tests we can make the measurement of intelligence possible. इंटेलिजेंस टेस्ट से हम कॉग्निटिव प्रोफाइल को मेजर कर सकते हैं. Whatever the mental capacities or capabilities possessed by an individual, with the help of intelligence tests, we can measure those capacities and capabilities. The goal is generally to assess the subject's aptitude for certain vocations or academic study. Dear students, what is the goal of intelligence tests? The basic purpose of intelligence tests is to make the measurement of academic aptitude or vocational aptitude possessed by an individual. जैसे कि हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, हम ब्लाइंडली किसी पर्सन को किसी भी फील्ड में नहीं डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट provide the training of carpentry or tailoring to the persons without knowing the aptitude, क्योंकि एप्टीट्यूड के बगैर एक गुड कारपेंटर नहीं बन सकता है. एप्टीट्यूड के बगैर एक टेलर मास्टर नहीं बन सकता है. टेलर मास्टर बनने के लिए एक इंडिविजुअल के पास टेलरिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए. अगर हम मेडिकल प्रिज्म से देखेंगे, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है. जब तक कि एक इंडिविजुअल में मेडिसिन का एप्टीट्यूड नहीं होगा, तब तक कि वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता है. सेम इज द केस विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हर कोई टीचर नहीं बन सकता है. गुड टीचर बनने के लिए एक इंडिविजुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड का होना जरूरी है. That is why, with the help of intelligence tests or other psychological tests, we can measure the aptitude possessed by an individual. Dear students, the intelligence tests are classified into various categories such as verbal tests, non-verbal tests, by and large performance tests.
Dear students, keeping in view the spectrum of intelligence tests, psychologists has mainly categorized it. उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट, verbal tests of intelligence. Second, non-verbal tests of intelligence. And third, performance tests of intelligence. Now, dear students, in today's lecture, we will purely focus on verbal tests of intelligence. And what are the various types or forms of verbal tests of intelligence? We will also discuss those. Verbal or language tests of intelligence. Verbal tests of intelligence are those tests in which subjects make use of language. The instructions are given in words, either written or oral form. The individuals being tested are required to use language for their responses. The verbal tests of intelligence is also called paper-pencil test. Verbal test of intelligence is a form of intelligence test dealing with words and numbers. Dear students, verbal tests को हम कहते हैं language loaded tests because the subject or testee has to use the language. Either language will be in written form or spoken form. और verbal tests of intelligence जो है इन्हें language loaded tests भी कहा जाता है या हम इन्हें पेपर पेंसिल टेस्ट्स भी कहा जाता है. अगर हमें एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर करना है with the help of paper pencil, we can know the mental capacities or cognitive profile of an individual. That is why verbal tests are called the paper pencil tests. या हम इन टेस्ट्स को लैंग्वेज लोडेड टेस्ट्स कहते हैं क्योंकि वर्बल टेस्ट जो है ये लैंग्वेज लोडेड होते हैं. द स्टूडेंट्स, टेस्टी जो है वो लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में भी यूज कर सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी यूज कर सकता है. These tests can only be carried out by literate people as it requires reading and writing, which cannot be done by illiterates. The verbal tests is concerned with abstract reasoning, working memory, thinking, which involve reading or listening to words, conversing, and writing. Or all verbal tests are meant for literate persons, not illiterate persons. क्योंकि जो illiterate person होता है उसे लैंग्वेज पे होल्ड नहीं होता है. That is why all verbal tests are meant for literate persons. जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हम verbal tests डिजाइन करते हैं. Dear students, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि verbal tests of intelligence किन के लिए बनाते हैं. So appropriate answer is verbal tests of intelligence are meant for only literate persons. क्योंकि इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है और इन्हें हम लैंग्वेज लोडेड टेस्ट्स भी कहते हैं. With the help of verbal tests of intelligence, we check the thinking, memory, reasoning, and other cognitive attributes possessed by an individual. Now we will discuss the various forms or types of verbal tests of intelligence. The major forms or types of intelligence tests, I mean to say you, verbal tests of intelligence are as under. Number 1, vocabulary tests. In a vocabulary test, the subject is asked to explain the meaning of words or phrases. For instance, what is difference between meat and meat? What are the meanings of word? Here,
We can also find meaning of phrases like it is raining cats and dogs. Do not become contention in boon. As you sow, so shall you reap. Dear students, first form or type of verbal tests of intelligence is vocabulary test. What is vocabulary test? Vocabulary test is that type of intelligence test जिसमें हम एक इंडिविजुअल की वोकैबुलरी चेक करते हैं और वोकैबुलरी के बुनियाद पे हम कहते हैं कि इसमें कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. Vocabulary simply means how much an individual is able to use the words or is able to make sentences. किस प्रकार से एक इंडिविजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि फ्लो जो वर्ड्स का है वो कितना है और कितनी उसकी वोकैबुलरी जो है वो इनरिचड है. या अपार्ट फ्रॉम वर्ड्स हाउ मच इंडिविजुअल इज एबल टू मेक ए सेंटेंसेस, वो एक्यूरेटली किस तरह से सेंटेंसेस को बनाता है. सेंटेंस सिंपली मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स की वो डिफरेंसेस डिस्क्राइब करता है, उनकी मीनिंग्स इन्फर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंडिविजुअल को कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड मीट यानी कि MEET एंड मीट MEAT मीट, मीट और मीट में क्या फर्क है. MEET मीट मीन्स मिलना and MEAT meat means ghost. What are the meanings of word here? एक word जो here है HAIR here, here means ball. दूसरा here जो है HERE here, it means यहाँ. तीसरा here जो है HEIR here, it means सुनना. चौथा here जो है HARE here means वारिस यानी कि प्रॉपर्टी का वारिस. चौथा हियर जो है HARE हियर मीन्स बिग एनिमल यानी कि खरगोश. तो एक ही वर्ड के इतने मीनिंग्स निकलते हैं. इस तरह से हम वोकैबुलरी टेस्ट के जरिए एक इंडिविजुअल की या व्यक्ति की वोकैबुलरी के बारे में जान सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम इट वी कैन आल्सो चेक द वोकैबुलरी पावर ऑफ इंडिविजुअल बाई आस्किंग सर्टन फ्रेजेस. कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसे फ्रेजेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इसका मतलब ये है बारिश घमासान की गिर रही है. डू नॉट ट्राई टू बिकम कंटेंशन इन बोन. इसका मतलब ये है फसाद की जड़ मत बनो. या हम और कोई फ्रेज पूछ सकते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसे बोओगे वैसे काटोगे भी. नंबर सेकंड, मेमोरी टेस्ट. इट इज डिजाइन्ड टू टेस्ट द सब्जेक्ट्स इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी which includes recall and recognition type of items. For example, telephone numbers, vehicle numbers. We can also ask him or her to reproduce about a certain lessons which she learned recently or a lesson which was learned by him in previous examination. For instance, writing or storytelling. Dear students, second important type of test is known as memory test. Power of retention and recalling is called the memory. तो मेमोरी टेस्ट से हम जान सकते हैं कि किस इंडिविजुअल में कितनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है. देयर आर ब्रॉडरली टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. एक मेमोरी को हम कहते हैं मेमोरी ऑफ रिकॉल और दूसरे मेमोरी को हम कहते हैं मेमोरी ऑफ रिटेंशन. और मेमोरी पावर जो है वो हर एक इंडिविजुअल में एक जैसा नहीं होता है. बहुत से प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. देयर इज वन ऑफ द साइकोलॉजी
That psychology is known as differential psychology. Dear students, differential psychology believes हर कोई व्यक्ति जो है वो हर एक एबिलिटी से डिफरेंट है, या हम कह सकते हैं यूनिक है। इससे साफ जाहिर ये होता है जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज है या ब्रेन कैपेसिटीज है वो भी डिफरेंट है। इट मीन्स हर एक इंडिविजुअल के पास अपना अपना कॉग्निटिव प्रोफाइल है। डियर स्टूडेंट्स, किसी इंडिविजुअल में शार्प मेमोरी होती है, किसी इंडिविजुअल में डल मेमोरी पाई जाती है। कोई इंडिविजुअल जो है उसमें रिकॉलिंग और रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी इंडिविजुअल में रिकॉलिंग और रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कमज़ोर होती है। सो वी कैन से दैट with the help of memory tests, we can check the memory of an individual. Dear students, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पर्सन था। जब भी उसे किसी भी ऑफिशियल फ़ोन नंबर के बारे में या दोस्तों के फ़ोन नंबर्स के बारे में या रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर्स के बारे में पूछा जाता था, वो डायरेक्टरी को बिना देख के फ़ोन नंबर्स के बारे में बताता था। जब भी उसे किसी को भी फ़ोन डायल करना होता था, ऑल द फ़ोन नंबर्स वायर स्टोर्ड इन हिज ब्रेन, आई मीन टू से यू इन द मेमोरी। उसकी मेमोरी सिर्फ शार्प ही नहीं था बल्कि रिटेनिंग कैपेसिटी और रिकॉलिंग कैपेसिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जिन इंडिविजुअल्स में रिटेनिंग कैपेसिटी और रिकॉलिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत स्टोर होती है और वो अप्रोप्रिएट टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को रिपीट भी कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका में और एक शख्स था। जब भी उसे व्हीकल के नंबर्स के बारे में बताया जाता था, जो भी उसने ज़िंदगी में व्हीकल देखा लाखों में से, और उन व्हीकल्स के नंबर्स ऑल उसके जहन में फीड थे और वो बराबर कहता था ये व्हीकल मैंने कहाँ पर देखा है, कब देखा है, और उस व्हीकल आई मीन टू से उस गाड़ी का नंबर क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेस्ट्स वी कैन चेक द मेमोरी एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अपार्ट फ्रॉम इट, टीचर्स भी चेक करते हैं हर एक लर्नर की मेमोरी का, लाइक विद द हेल्प ऑफ ऐसे राइटिंग और स्टोरी टेलिंग। हर एक लर्नर की मेमोरी एक जैसी नहीं होती है। किसी लर्नर में स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है या हम कह सकते हैं शार्प मेमोरी हो सकती है। नटशल में हम कह सकते हैं मेमोरी ऑफ रिकॉल और रिटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कोई ऐसा भी लर्नर होता है जिसकी मेमोरी बहुत पुअर या कमज़ोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे राइटिंग से हमें पता चल सकता है या स्टोरी टेलिंग से हमें पता चल सकता है किस लर्नर में कितनी मेमोरी कैपेसिटी और एबिलिटी मजबूत है। तो एट द एंड वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेस्ट्स वी कैन चेक द मेमोरी एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। नंबर 3, comprehension test. This test is designed to assess the subject's understanding or the actual grasp of the concepts. While asking him or her Archimedes' principle, we can make him or her to explain why a ship floats in a sea while a needle sinks. Third important test is, the test is known as comprehension test. Dear students, comprehension tests are those tests in which we check the understanding and grasping power of an individual, कि किस इंडिविजुअल में कितना ग्रास्पिंग पावर या अंडरस्टैंडिंग पावर है। जिस तरह से मेमोरी डिफरेंट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ कंप्रहेंशन हर एक इंडिविजुअल का, हर एक व्यक्ति का एक जैसा कंप्रहेंशन नहीं होता है। किसी इंडिविजुअल में कंप्रहेंशन पावर ज़्यादा होता है, किसी इंडिविजुअल में कंप्रहेंशन पावर कम होता है, और किसी इंडिविजुअल में बाय एंड लार्ज कंप्रहेंशन पावर न होने के बराबर होता है।
अगर हमें कंप्रहेंशन चेक करना होगा, डियर स्टूडेंट्स, हम बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइक आर्चिमेडीज प्रिंसिपल कि एक शिप जो है वो क्यों पानी पे फ्लोट होता है, एंड व्हाई द निडल सिंक्स इन द वाटर। शिप क्यों फ्लोट होता है और जो निडल है वो क्यों डूब जाती है। तो इससे पता चल सकता है कि बच्चे का कंप्रहेंशन कितना स्ट्रांग है। अगर बच्चे ने जवाब दिया कीपिंग इन व्यू द आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, आई मीन टू से यू फोर्स ऑफ बयानसी, तो फोर्स ऑफ बयानसी की वजह से हमें पता चल जाएगा कंप्रहेंशन लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। या इसके बावजूद भी हम बच्चे को कह सकते हैं वाई कॉटन इज सॉफ्ट एंड आयरन इज हार्ड। आयरन जो है वो क्यों हार्ड है और कॉटन जो है वो क्यों सॉफ्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बच्चे ने जवाब दिया द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द आयरन while as atoms or molecules are loosely packed in the cotton, तो इसीलिए कॉटन जो है वो सॉफ्ट है क्योंकि उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं। while as in case of आयरन, आयरन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए आयरन जो है वो हार्ड होता है। यानी कि दोनों सूरतों में हमें बच्चे के कंप्रहेंशन के बारे में पता चल सकता है। नंबर 4, इंफॉर्मेशन टेस्ट्स। These are those tests which help us to assess general information, general knowledge of a subject. For example, where is Qutub Minar situated? Which is the capital city of Egypt? Which is the world's largest continent? Dear students, information tests वो वर्बल टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस है जिससे हम एक इंडिविजुअल की जनरल नॉलेज के बारे में जान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल में कितनी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एंटाइटी। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे से पूछेंगे विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल सिटी का नाम बताओ। अगर उसने सही जवाब दिया है कायरो इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, तो उससे हमें उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा कि इसकी जनरल नॉलेज जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड के फैक्ट्स इसे कितने स्ट्रॉन्गली पता है। या विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो दैट वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है लाइक कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम द एशिया देयर आर अदर 6 कॉन्टिनेंट्स लाइक कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप and Antarctica. These are the 7 major continents in the world. तो with the help of information tests हम एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन कितनी उसके पास है। डिफरेंट क्वेश्चंस हम उससे पूछ सकते हैं, एनिमल्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, कैपिटल सिटीज़ के बारे में, या और भी कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्स के रिलेटेड जो है, तो हम इंफॉर्मेशन टेस्ट के जरिए ये जान सकते हैं। नंबर 5, एसोसिएशन टेस्ट। दीज आर दोज टेस्ट्स इन विच द सब्जेक्ट इज टेस्टेड फॉर हिज हर एबिलिटी टू पॉइंट आउट सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बिटवीन 2 or more concepts or objects. For example, what is difference between plant cell and animal cell? What are the distinguished features of carnivores from herbivorous animals? Dear students, association tests are those tests which help us to check the mental abilities or capacities of an individual with the help of
pointing out similarities or dissimilarities. जब हम एक व्यक्ति को किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड पूछते हैं या कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड पूछते हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर लो दो चीज़ों के दरमियान या सिमिलरिटीज़ फाइंड कर लो दो चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंडिविजुअल को आस्क क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर उसने प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंसेस डिस्क्राइब की, तो उससे हमें पता चल जाएगा उसकी एबिलिटीज़ के बारे में। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं एसोसिएशन टेस्ट। या हम बच्चे से पूछ सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से एनिमल्स है और हर्बीवर्स कौन से एनिमल्स है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स आर कॉल्ड द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। और टॉप कार्निवोर एनिमल जो है, दैट्स टाइगर। अपार्ट फ्रॉम द टाइगर और लायन, अदर कार्निवर्स एनिमल्स आर लाइक पोलर बियर। इसी तरह से प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम हर्बीवर्स कहते हैं। और हर्बीवर्स एनिमल्स में शीप आता है या काऊ आती है। तो इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान और एक कैटेगरी आती है जिन्हें हम कहते हैं ओमनिवर्स। ओमनिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, जिसमें डॉग भी आता है और ह्यूमन बीइंग भी एक ओमनिवर एनिमल है। किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो दो चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ डिस्क्राइब करता है। द वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस are further classified into two categories such as individual tests and group tests. Dear students, जो वर्बल टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं। एक टेस्ट को कहते हैं इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट्स और दूसरे को कहते हैं ग्रुप वर्बल टेस्ट्स। Now, one by one, we will describe individual verbal tests of intelligence and group verbal tests of intelligence. Dear students, we will give the detailed account how individual verbal tests of intelligence are different from the group verbal tests of intelligence. Individual verbal tests. In these types of intelligence tests, one person appears the test at a time for whom it is meant. The testee is required to use language while attending the test items. Here the subject's response may be given to oral form or written form. The various verbal individual tests are Simon Binet test 1905, Goddard test 1910, Stanford Binet test 1916. Dear students, individual verbal tests of intelligence ये वो टेस्ट्स है जिसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। तो इसमें एक इंडिविजुअल को पेपर पेंसिल दिया जाता है क्योंकि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट्स और दोज लैंग्वेज लोडेड टेस्ट्स जिसमें हम लैंग्वेज के ज़रिए, चाहे लैंग्वेज रिटन फॉर्म में होगी या स्पोकन फॉर्म में होगी, एक व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। ऑरली हम आस्क एक व्यक्ति को क्वेश्चंस करते हैं और हम देखते हैं वो किस तरह से कि क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करता है, आंसर देता है, या किस तरीके से वो राइटिंग के ज़रिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। इस तरह से हम एक टेस्टी या एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस के बारे में पता कर सकते हैं। Dear students, there are various individual verbal tests of intelligence. एग्जाम में ये इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमन बिनेट टेस्ट 1905। अगर कभी भी
एग्जाम में आ जाएगा सिमन बिनेट टेस्ट कौन सा टेस्ट है, then you have to write down the answer. It is individual verbal test of intelligence, जिसे सिमन एंड बिनेट ने 1905 में डिजाइन किया। और इसके बावजूद भी दूसरा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, दैट इज गोडार्ड टेस्ट। गोडार्ड ने इस टेस्ट को 1910 में डिजाइन किया। और भी एक टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है जिसे इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, दैट इज नोन एज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, which has designed in 1960. Number 2, group verbal tests. The group verbal tests on intelligence are administered to a large number of subjects at a time who can read and write the language of the test. The subjects are warned to make their pencils and pens ready before administration of the test. Here, time limit of the test is almost all equal to every student. Army Alpha Test 1917 by Robert York and Terman. Group Test of Mental Abilities 1920 are the major group verbal tests of intelligence. Dear students, एक समय में एक इंडिविजुअल की या एक व्यक्ति की कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी को चेक करना, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट या इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। वाइल एज एक समय में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की इंटेलिजेंस को चेक करना, दैट इज नोन एज ग्रुप वर्बल टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस फेमस ग्रुप वर्बल टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, और इनके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी अल्फा टेस्ट 1917 में डिजाइन किया गया। सो ऑलवेज कीप इट इन द माइंड। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, इसे 1917 में वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट ने इसे डिजाइन किया। हिज नेम इज रॉबर्ट यॉर्क्स। और जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसे हम लिटरेट आर्मी मैन की इंटेलिजेंस चेक करते हैं। जो लिटरेट आर्मी पर्सनल्स है, उनकी इंटेलिजेंस को हम आर्मी अल्फा टेस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम इट, टर्मैन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी दूसरा टेस्ट है जिसे टर्मैन ने डिजाइन किया। वो भी ग्रुप वर्बल टेस्ट है एंड टर्मैन हैज डिजाइन इट इन 1920। Dear students, these are the various major group verbal tests of intelligence. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.